اور اب المنظر کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC نے مشرق وسطی کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجوزہ منصوبے کو مسترد کر دیا۔ OIC کا اجلاس پیر کے روز فلسطینی قیادت کی درخواست پر سعودی عرب کے شہر جدہ میں منعقد ہوا، جس میں کہا گیا کہ تمام رکن ممالک اس منصوبے کے نفاذ میں کسی بھی طرح امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے اور نہ اس سلسلے میں کوئی تعاون کریں گے۔ 57 رکنی تنظیم نے رکن ممالک کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے امریکی انتظامیہ کو کسی بھی قسم کا تعاون پیش کرنے سے گریز کریں۔ OIC کا ماننا ہے کہ ٹرمپ کا اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کے حل کے لیے امن منصوبہ ناقابل عمل ہے۔ یاد رہے کہ OIC دنیا میں اقوام متحدہ کے بعد دوسری سب سے بڑی بین الحکومتی تنظیم ہے، جس کے ارکان ممالک کی مجموعی آبادی 1.8 ارب سے بھی زائد ہے۔ اس نام نہاد امن منصوبے کو فلسطین پہلے ہی یک طرفہ قرارداد دے کر مکمل طور پر مسترد کر چکا ہے۔ ادھر فلسطین کے صدر محمود عباس کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت ٹرمپ کے مشرق وسطی امن منصوبے کے بعد امریکہ کا بائیکاٹ کرنا جاری رکھے گی۔ رام اللہ میں وزراء کے گروپ سے خطاب کرتے ہوئے محمود عباس نے کہا کہ فلسطینی اتھارٹی کو اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی تعاون روکنے میں کوئی بھی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا اگر اس نے اس نام نہاد امن منصوبے پر پیش رفت کی۔ خیال ہے کہ فلسطینی اتھارٹی نے اسرائیل فلسطین تنازع کے تصفیے کے لیے ٹرمپ کے امن منصوبے کو متعصبانہ اور جانبدارانہ کہہ کر مسترد کر دیا ہے۔ الامريكان استمروا في هذا المشروع، المقاطعة موجودة، كل المقاطعة، واحنا قاطعناهم طبعا بعد القدس، قاطعنا امريكا وقلنا انه الادارة والبيت الابيض مش هنحكي، واستمرينا في قناة واحدة، وبعدين هذه القناة ايضا يجب ان تقطع، وعلاقات اقتصادية الحمد لله لا ما في بيننا وبينهم اي شيء، لانه قطعوا كل المعونات والمساعدات وغيرها، فكذلك مع اسرائيل لا يوجد الان الا۔ وہیں عرب لیگ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطی سے متعلق امن منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ عرب لیگ کے مطابق یہ منصوبہ دونوں فریقوں کے لیے انصاف پر مبنی ڈیل فراہم نہیں کر سکتا۔ عرب لیگ نے اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجوزہ امن منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ فلسطین کی درخواست پر مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ہوئے عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں ٹرمپ کے امن منصوبے کو مسترد کر دیا گیا۔ عرب لیگ کے وزرائے خارجہ نے اعلان کیا کہ وہ امریکی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ یہ منصوبہ فلسطینیوں کی خواہشات پر پورا نہیں اترتا۔ امریکہ کے 3 قریبی اتحادی ممالک مصر، سعودی عرب اور اردن کے ساتھ ساتھ عراق، لبنان اور دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ نے کہا کہ سن 1967 سے پہلے کے علاقوں میں فلسطین کے حقوق کو تسلیم کیے بغیر کوئی امن نہیں ہو سکتا۔ عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابو الغیت نے کہا کہ اس منصوبے میں پیش کیے گئے حل تنازع کو ایک ریاستی صورتحال بناتے ہوئے دوسرے فریق کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امن منصوبے کی روح سے فلسطینی دوسرے درجے کے شہری اور شہریت کے بنیادی حقوق سے محروم ہوں گے۔ عرب لیگ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا کہ وہ اسرائیلی قبضے کے خاتمے اور ایک ایسی فلسطینی ریاست کے قیام کے عزم پر قائم ہے جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہوگا۔ فلسطینی صدر نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے فون پر ٹرمپ کے ساتھ اس منصوبے پر بات کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس منصوبے کے مطالعے کے لیے اس کی کاپی وصول کرنے سے بھی انکار کیا تھا۔ فلسطینی صدر نے کہا کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں فون پر ان سے بات کروں، لیکن میں نے کہا نہیں۔ محمود عباس نے مزید کہا کہ امریکی صدر مجھے ایک خط بھیجنا چاہتے ہیں لیکن میں نے انکار کر دیا۔ فلسطینی صدر نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ٹرمپ یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے ان سے مشاورت کی ہے۔ محمود عباس نے مزید کہا کہ فلسطین نے ڈونلڈ ٹرمپ کے پیش کردہ مشرق وسطی کے امن منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تمام تعلقات ختم کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اسرائیل کو آگاہ کر دیا ہے کہ ان کے اور امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی سمیت کسی بھی طرح کے تعلقات نہیں رکھے جائیں گے۔ اس سے قبل فلسطینی صدر نے ٹرمپ کے مجوزہ منصوبے کے رد عمل میں کہا تھا کہ وہ 1000 مرتبہ نہیں کہہ کر اسے مسترد کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ 28 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پیش کیے گئے مشرق وسطی امن منصوبے میں ایک محدود فلسطینی ریاست اور مقبوضہ مغربی کنارے پر آباد بستیوں پر اسرائیلی خود مختاری تسلیم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔
उधर ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता अमन मंसूबे को शर्मनाक और काबिले नफरत करार दिया। ईरानी सदर हसन रूहानी अमरीका के इस अमन मंसूबे को तमाम मुसलमानों के लिए शर्मनाक बताया है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने इजराइल फिलिस्तीन तनाज़े के हल के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश किए गए अमन मंसूबे को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। हसन रूहानी ने कहा कि ट्रंप का अमन मंसूबा तमाम मुसलमानों के लिए शर्मनाक और काबिले नफरत है। ईरानी सदर ने 2 फरवरी को इस्लामी जमहूरिया के बानी आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के मज़ार पर हाजिरी के मौके पर अपने खिताब में कहा कि इन दिनों हम एक बड़ी शर्मिंदगी का मुशाहिदा कर सकते हैं जिसे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने सदी के मुआहदे के तौर पर तारीखी करार दिया है। हसन रूहानी ने कहा कि इनके बयानात तमाम मुसलमानों और आज़ादी के मुतलाशी लोगों के लिए कितने शर्मनाक और नफरत अंगेज हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मज़ाहिमत के सिवा कोई रास्ता नहीं, मुत्तहिद होकर हमलावर के सामने खड़ा होना है। इससे कबल ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने ट्रंप के अमन मुआहदे की तजवीज़ को गद्दारी की तजवीज़ बताया था। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी सदर ट्रंप ने इजराइल फिलिस्तीन तनाज़े के तस्फ़िये के लिए अपने मंसूबे का ऐलान किया था। इस मंसूबे में यरूशलम को इजराइल का गैर मुनक़सिम दारुल हुकूमत रखने का अहद शामिल है, जबकि अमन मंसूबे में महदूद फिलिस्तीनी रियासत के क़याम की बात कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब रुख करेंगे इराक का, जहां नए वज़ीर आज़म की नामजदगी के बाद भी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन ने मुल्क के नए वज़ीर आज़म के तौर पर मोहम्मद तौफीक की नामजदगी को मुस्तरद कर दिया है। इराक में मुजाहरे जारी। मुजाहिरीन ने मोहम्मद तौफीक अलावी की बतौर वज़ीर आज़म नामजदगी को कर दिया मुस्तरद। मोहम्मद तौफीक की नामजदगी के खिलाफ बगदाद समेत कई शहरों में मुजाहरे। मुजाहिरीन का नामजदगी वापस लेने का मुतालबा। इराक के नए वज़ीर आज़म के लिए मोहम्मद तौफीक अलावी की नामजदगी के खिलाफ मुजाहिरीन मुल्क के दारुल हुकूमत बगदाद समेत कई शहरों में सड़कों पर निकले और शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुल्क के नए वज़ीर आज़म के लिए मोहम्मद तौफीक की नामजदगी को मुस्तरद कर दिया और नामजदगी वापस लेने का मुतालबा किया। बगदाद के अलावा नजफ, बसरा और नसीरिया में मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया कि मोहम्मद अलावी का ताल्लुक भी गुज़िश्ता नाकाम सियासी इस्टेब्लिशमेंट से है। मुजाहिरीन ने मोहम्मद अलावी की नामजदगी को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता 16 सालों में उन लोगों की तरफ से सिर्फ तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं देखा। मुजाहिरीन हुक्मरान तबके की मुकम्मल तौर पर तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं। दारुल हुकूमत बगदाद में तहरीर स्क्वायर पर मुजाहिरीन मोहम्मद अलावी नामंजूर के नारे लगाते रहे। ख्याल है कि इराक में गुज़िश्ता 4 माह से जारी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के बाद इराक के सदर बरहाम साले ने मोहम्मद तौफीक अलावी को मुल्क का नया वज़ीर आज़म नामजद किया है। इस नामजदगी के बाद मोहम्मद तौफीक को 1 माह में हुकूमत तश्कील देनी है, जिसकी मंजूरी पार्लिमान से जरूरी है। नामजद वज़ीर आज़म मोहम्मद तौफीक अलावी को क़ब्ल अज़ वक़्त इंतख़ाबात तक मुल्क चलाने का हदफ दिया गया है, ताहम इन इंतख़ाबात की तारीख का ऐलान ताहाल सामने नहीं आया। मोहम्मद तौफीक अलावी पहले भी काबीना का हिस्सा थे और उनके पास मवासलात का कलमदान था। इनकी तकर्री सदर ने एक ऐसे मौके पर की है जब उन्होंने सियासी जमातों को अल्टीमेटम दिया था कि वो किसी एक उम्मीदवार पर इत्तेफाक कर लें, वरना वो खुद किसी को वज़ीर आज़म नामजद कर देंगे। मोहम्मद तौफीक अलावी 2005 में रुकने पार्लिमान बने थे, जबकि वो वज़ीर आज़म नूरी अल मालिकी की काबीना में वजीर बराए मवासलात थे। उन्होंने 2012 में उस वक्त के वज़ीर आज़म नूरी अल मालिकी पर बदउनवानी पर खामोशी का इल्जाम लगाकर इस्तीफा दे दिया था। मुल्की सदर की जानिब से वज़ीर आज़म नामजद किए जाने के बाद मोहम्मद तौफीक अलावी ने कहा था कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर से शुरू होने वाले एहतजाज में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से हलाक हुए सैकड़ों अफराद के लवाहिकीन को इंसाफ दिया जाए। नामजद वज़ीर आज़म ने मुल्क से खिताब करते हुए कहा था कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों का खून रायगा नहीं जाएगा।
जुर्म करने वालों का एहतसाब किया जाए और इंसाफ हासिल किया जाएगा। मोहम्मद तौफीक अलावी ने भी वादा किया कि वो रोजगार के नए मौके पैदा करेंगे, जबकि बदनवानी के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने किसी भी मजहबी तासुब के बगैर हुकूमत कायम करने का भी वादा किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने नए वज़ीर-ए-आज़म की नामजदगी का खैर मकदम किया है, जबकि अमेरिका ने कहा है कि एक खुद मुख्तार और ईमानदार हुकूमत आवाम के मसाइल का हल निकाल सकती है। वाज़ेह कि इराक में गुज़िश्ता बरस अक्टूबर से हजारा अवाम बगदाद समेत मुल्क के कई शहरों में बदनवानी, बेरोजगारी, महंगाई, अक़रबा परवरी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में अब तक सैकड़ों अफराद हलाक जबकि हजारों अफराद जख्मी हो चुके हैं। शदीद अवामी एहतजाज को देखते हुए इराक के वज़ीर-ए-आज़म आदिल अब्दुल महदी को मुस्ताफी होना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि उनके मुल्क ने शुमाली शाम के इदलिब में शामी फौज की शेलबारी का जोरदार जवाब दिया है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हमारी जवाबी कार्रवाई में 6 शामी फौजी हलाक हुए। एर्दोगान ने कहा कि तुर्की के जंगी तैयारों और तोपखाने ने शामी फौज को जोरदार जवाब दिया है। इससे कबल शामी फौज के हमले में तुर्की के कम से कम 4 फौजी हलाक हुए थे, जबकि तुर्की के 9 फौजी जख्मी भी हुए थे। तुर्की फौज पर हमला उस वक्त किया गया था जब बागियों के कब्जे वाले आखिरी इलाके इदलिब में तुर्की के फिजी काफिला दाखिल हुआ था। इससे कबल तुर्की की वजारत दिफा ने बताया था कि इदलिब के लिए इजाफी फौज रवाना की गई है। तुर्की की जवाबी कार्रवाई से दोनों हमसाया मुल्कों के दरमियान रास्त टकराव के हालात पैदा हो गए हैं। Önceki saldırılar gibi bu saldırının cevabını da misliyle şu anda vermiş durumda, vermeye de devam ediyor. Çok farklı bir şekilde orada gerek fırtına obüslerimizle, gerekse havadan F-16'larımızla şu anda oradaki belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor. Tespit edilen 40'a yakın nokta şu anda sürekli operasyonun hedefleri arasında ve ilk belirlemelere göre de 30 ila 35 civarında karşı taraftan Suriyeli bu ekibin içerisinde etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Fakat noktayı koymak yok. aynı şekilde operasyonda. वहीं शाम के सुबह इदलिब में रूसी और शामी हुकूमत की तरफ से की गई बमबारी के नतीजे में कई बच्चों समेत कम से कम 14 अफराद हलाक हो गए। सीरियन ऑब्जर्वेटरी ने हमलों की तस्दीक कर दी है। बरतानिया से सरगर्म सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक रूसी और शामी हुकूमत के तैयारों ने इतवार के रोज शुमाल मगरबी इदलिब सूबे को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 14 आम शहरी हलाक हो गए। बताया गया कि सिरमैन कस्बे में मारे जाने वाले 8 अफराद में से 7 एक ही खानदान के फर्द थे। जर्मनी ने इन हमलों को फौरन बंद करने की अपील करते हुए कहा कि शाम में इंसानी अलमिया की सूरत हाल पहले ही इंतहाई तबाहकुन है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने तालिबान से मुतालबा किया है कि वो अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां रोके। वस्ती एशियाई रियासत और साबिक सोवियत जमहूरियत उज़्बेकिस्तान के दौरे के दौरान माइक पोम्पियो ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन मुआहिदे से कबल यह जरूरी है कि तालिबान तशद्दुद की कार्रवाइयों को रोकने की जमानत दें। ताशकंद में मीडिया से बात करते हुए पोम्पियो ने कहा कि माजी में अमन मुआहिदा करीब था, लेकिन तालिबान की अदम संजीदगी की वजह से डील नहीं हो सकी। इससे कबल पोम्पियो ने उज़्बेकिस्तान हुकूमत के साथ मुख्तलिफ बाहिमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। ईरान के सदर हसन रूहानी ने यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के नए चीफ जोसेफ बोरवेल के साथ तेहरान में बातचीत की। इससे कबल ईयू चीफ ने ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ से भी ईरान के आलमी ताकतों के साथ 2015 के तय पाए जौहरी मुआहिदे पर बातचीत की थी। और अब खबर चीन से है, जहां पुरअसरार कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। कोरोना वायरस से चीन में एक दिन में 57 अफराद हलाक हो गए। वायरस से हलाकतों की मजमूई तादाद 360 से तजावुज कर चुकी है। चीन
चीन में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 360 से तजावुज कर चुकी है। इस मोजी वायरस से एक दिन में मजीद 57 हलाकतें हुई हैं। चीनी हुकाम के मुताबिक 56 अफराद कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा सूबे हुबाई में हलाक हुए, जबकि एक शख्स जुनूब मगरबी शहर चोंगचंग में हलाक हुआ। एक दिन में 57 अफराद की हलाकत कोरोना वायरस के सामने आने से लेकर अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। कोरोना वायरस की तकरीबन 3000 नए केसेस सामने आए हैं। इस तरह मुतासरा अफराद की तादाद 17,000 से जायद हो गई है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मशरक़ी चीन के शहर वेंझू में आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वेंझू शहर में सड़कें बंद कर दी गई हैं और लोगों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। कोरोना वायरस के इलाज मुआलजे के लिए हुकूमत ने गैर मामूली तेजी दिखाते हुए 2 नए अस्पताल कायम किए हैं, जिनमें मुतासरीन का इलाज जारी है। इन अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए तमाम तर सहूलियात मैसर हैं। अस्पतालों में पानी, बिजली और इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद है। कोरोना वायरस पिछले साल चीन के वस्ती शहर वुहान में दरियाफ्त हुआ था। वुहान शहर ही इस वायरस का मरकज है। ख्याल किया जाता है कि वुहान में जानवरों की मंडी से ये वायरस इंसानों में फैलने का सबब बना। वुहान पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से लॉकडाउन है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कोरोना वायरस को शैतान करार देते हुए कहा कि चीन इसे शिकस्त देगा। कोरोना वायरस की वजह से सांस का शदीद इन्फेक्शन होता है। कोरोना वायरस का ताल्लुक वायरसेस के उस खानदान से है जिसके नतीजे में मरीज बुखार में मुब्तला होता है। इस वायरस की अलामत बुखार से शुरू होती है, जिसके बाद खुश्क खांसी होती है और फिर 1 हफ्ते के बाद मरीज को सांस लेने में दुश्वारी होती है। इससे बचाव के लिए ना तो कोई वैक्सीन है और ना ही कोई मखसूस इलाज। ये वायरस इससे कब्ल कभी नहीं देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर केरल में कोरोना वायरस के तीसरे केस की तस्दीक हुई है। एक और केस पॉजिटिव पाया गया। रियासत के वजीर सेहत के शैलजा ने इसकी तस्दीक की। चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के मद्देनजर हिंदुस्तान ने ताज़ा एडवाइजरी जारी की है, जिसमें हिंदुस्तानी अवाम से फिल वक्त चीन का दौरा रद्द करने से अपील की गई है। वहीं चीन से आए जिन लोगों को हरियाणा के मनेसर में अलहदा तौर पर रखा गया था, उनमें कोरोना वायरस की अलामात नहीं पाई गई। चीन के वुहान शहर से फैला खतरनाक कोरोना वायरस दुनिया के 24 ममालिक में फैल चुका है। चीन के अलावा दीगर ममालिक में कोरोना वायरस के तकरीबन 150 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। फिलिपाइन में इस वायरस से एक शख्स की मौत हुई है। चीन से फैले कोरोना वायरस ने दुनिया के कई ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है। ये खतरनाक वायरस अब तक 24 ममालिक में रिपोर्ट हो चुका है। फिलिपाइन में कोरोना वायरस के बायस एक शख्स की हलाकत की तस्दीक हुई है, जो चीन से बाहर अब तक की पहली हलाकत है। 44 साल शख्स का ताल्लुक चीन के सूबा हुबाई के शहर वुहान से था, जहां इस वायरस की सबसे पहले तशखीस हुई थी। आलमी इदारा सेहत ने वाज़ेह किया है कि यह शख्स फिलिपाइन आने से कबल इस वायरस से मुतासिर हो चुका था। आलमी इदारा सेहत के फिलिपाइन में मौजूद नुमाइंदा ने कहा है कि यह चीन से बाहर इस वायरस के बायस होने वाली पहली हलाकत है। ताहम हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए कि यह मकामी सतह पर पैदा होने वाला केस नहीं है। यह शख्स उस जगह से आया है जहां से इस वायरस की शुरुआत हुई है। फिलिपाइन के महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक इस शख्स को फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला के एक अस्पताल में शदीद निमोनिया की शिकायत पर दाखिल किया गया था। एलामिया के मुताबिक ये शख्स एक चीनी खातून के हमरा फिलिपाइन पहुंचे थे और इन खातून में भी वायरस की तशखीस की जा चुकी है। महकमे सेहत के मुताबिक अब वो इन अफराद की खोज में हैं जिन्होंने इस शख्स के साथ सफर किया था, ताकि इन्हें भी अलहदगी में रखा जा सके। इसके अलावा किसी भी ऐसे शख्स को भी जो इस शख्स से और खातून से मिले हों। इस शख्स की हलाकत की तस्दीक से कुछ देर कबल ही फिलिपाइन ने चीन से आने वाले गैर मुल्की अफराद के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी। चीन के अलावा दीगर ममालिक में कोरोना वायरस के 150 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। चीन के बाद कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा 20 केसेस जापान में रिपोर्ट हुए हैं। थाईलैंड में कोरोना वायरस के 19 केसेस की तस्दीक हुई है, जबकि अमेरिका में भी 9 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया। फ्रांसीसी हुकाम का कहना है कि चीन के शहर वुहान से फ्रांस लौटने वाले 20 अफराद में कोरोना की अलामात पाई गई हैं, जिसके बाद मुतासरा अफराद को अलहदा करके इनके खून के नमूने लिए गए हैं। कोरोना वायरस के केसेस हांगकांग, कनाडा, मलेशिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, सिंगापुर, वियतनाम, ताइवान, बरतानिया, रूस, जर्मनी व दीगर मुल्कों में दर्ज किए गए हैं। तेजी से फैलने वाले कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए दुनिया भर में कई ममालिक ने चीन से आने वाले अफराद के लिए अपनी सरहदें बंद कर दी हैं।
امریکہ اور آسٹریلیا نے کہا ہے کہ وہ ان تمام غیر ملکیوں کے داخلے پر پابندی لگائیں گے جو حال ہی میں چین میں موجود تھے۔ امریکہ نے غیر معمولی صحت عامہ کی ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے گزشتہ 2 ہفتے میں چین میں رہنے والے غیر ملکی شہریوں کے داخلے پر پابندی لگائی ہے۔ آسٹریلیا نے بھی چین سے لوٹنے والے شہریوں کو 2 ہفتوں کے لیے علیحدگی میں رکھنے کو کہا ہے، جبکہ کئی حکومتوں نے چین سے اپنے شہریوں کو واپس بھی بلوایا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان، روس، جاپان اور اٹلی بھی اس قسم کی سفری پابندیوں کا اعلان کر چکے ہیں، تاہم عالمی صحت کے حکام نے ایسے اقدامات نہ لینے کا مشورہ دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے سرحدوں پر اسکریننگ کی تجویز دی ہے اور ساتھ ہی تنبیہ بھی کی ہے کہ سرحدوں کو بند کرنے سے وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوگا، کیونکہ لوگ غیر سرکاری طور پر کئی ممالک میں داخل ہوتے رہتے ہیں۔ چین نے سفری پابندیوں کی لہر پر تنقید کی ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ ادھر روسی وزیراعظم نے اعلان کیا ہے کہ اگر کسی غیر ملکی میں کورونا وائرس پایا گیا تو غیر ملکیوں کو ان کے ملک واپس بھیج دیا جائے گا۔ کابینہ میٹنگ میں بولتے ہوئے میخائل نے کہا کہ روس میں اس وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ روس میں کورونا وائرس کے 2 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ روس نے چین کے ساتھ ملنے والی اپنی سرحد کو بند کر دیا ہے اور دونوں ممالک کے بیچ ٹرین رابطے کو بھی معطل کر دیا ہے۔ روس کے نائب وزیر اعظم نے بتایا ہے کہ روسی فضائیہ کے جہاز روسی باشندوں کو وطن لانے کے لیے چین کے ہوبی صوبے جائیں گے۔ территории Российской Федерации выявлено 2 больных новой инфекции коронавируса в Забайкальском крае и Тюменской области. Они находятся под наблюдением жестким, изолированы, им оказывается необходимая помощь. Оба граждане Китая. ادھر مصر میں عالمی صحت تنظیم کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ قاہرہ میں تنظیم کے علاقائی ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ نیوز کانفرنس میں مشرق وسطیٰ میں کورونا وائرس سے متعلق پیش رفت پر غور کیا گیا۔ تنظیم کے علاقائی ڈائریکٹر احمد المنظری نے کہا کہ علاقے میں وائرس کے متاثرین کے 6 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ ان میں UAE کے ایک ہی گھر کے 4 افراد بھی شامل ہیں۔ عالمی صحت تنظیم نے علاقے کے ملکوں کو وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ٹیسٹنگ کٹس فراہم کی ہے۔ You know that there are a number of cases in the region who are bringing back to their students into the country. Egypt is one of them, Sudan, Morocco, Tunisia. We are helping them and we are working with them just to ensure that those students who are coming are healthy and they don't disseminate and they don't spread the infection. And we are giving them the testing kits for them to test if any